জনগণনার সঙ্গে এবার জাতি গণনাও করা হবে। বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক কমিটি। তবে জাত গণনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা করে প্রকাশ করা হবে না। আগামী জনগণনার সঙ্গে এই সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক শেষে এটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাতি গণনা নিয়ে মন্ত্রিসভা বিবেচনা করবে। এই বিষয়টা নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রী সদস্যদের একটা দল গঠন করা হয়েছিল। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল জাতি গণনার সুপারিশ করেছিল। তা সত্ত্বেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার পূর্ণাঙ্গ জাতি গণনার পরিবর্তে কেবল জাত সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই বিষয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কি বলছেন শুনব। तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাতি গণনা নিয়ে মন্ত্রিসভা বিবেচনা করবে। এই বিষয়টা নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রী সদস্যদের একটা দল গঠন করা হয়েছিল। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল জাতি গণনার সুপারিশ করেছিল। তা সত্ত্বেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার পূর্ণাঙ্গ জাতি গণনার পরিবর্তে কেবল জাতি সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জাতি গণনার সপক্ষে ফের জোরালো সওয়াল রাহুল গান্ধীর। সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতে রাহুল বলেন, আমরা সংসদে জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবি তুলে আসছি। নরেন্দ্র মোদী বলতেন শুধু 4টি জাত রয়েছে। হঠাৎ 11 বছর বাদে, ক্ষমতায় আসার 11 বছর বাদে জাতিভিত্তিক জনগণনার ঘোষণা করলেন। কি হলো জানি না, তবে আমরা এই জাতিভিত্তিক জনগণনার সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। কিন্তু আমরা টাইমলাইন চাই। আমরা জানতে চাই এটা কবে হবে। জাতিভিত্তিক জনগণনার একটা মডেল হতে পারে তেলেঙ্গানা। এই গণনা কিভাবে করা যেতে পারে তার ব্লুপ্রিন্টও মিলতে পারে ওখান থেকেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব দিচ্ছি, জাতিভিত্তিক জনগণনার ডিজাইন আমরাই করে দিতে পারি, কারণ এই ডিজাইনটা খুব জরুরি। বিহার ও তেলেঙ্গানা দুটি রাজ্যের ডিজাইনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। শুধু সংরক্ষণ নয়, আমাদের প্রধান প্রশ্ন দেশে দলিত এবং ওবিসিদের কতটা ভাগ রয়েছে সেটা জানা। জাতিভিত্তিক জনগণনার সেটা এক প্রকার জানা যাবে, কিন্তু এই গণনাকে ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা সংবিধানের 15 নম্বর ধারার কথাও বলেছিলাম, যেখানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আইন। আমরা চাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই আইনটা অবিলম্বে কার্যকর করা শুরু করুক। ঠিক কি বললেন এই বিষয়ে कांग्रेस सांसद राहुल गांधी? আসুন শুনি। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं।
एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार ইমপ্লিমেন্ট करना शुरू करे। জনগণনার সঙ্গে এবার জাতি গণনাও করা হবে। বুধবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক কমিটি। তবে জাত গণনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা করে প্রকাশ করা হবে না, আগামী জনগণনার সঙ্গেই এই সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক শেষে জানিয়েছেন রেল এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কি বলেছেন তিনি, আসুন শুনি। तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।